friends, how are you all? I hope all of you are fine and stay safe at your home. So in our today class we study about some properties of the reflection, some formulas of the reflection in case of the plane mirrors, so which will help you in solving some of the numericals. So the first properties in case of the reflection, first we know about the reflection. What is reflection? When an incident light is strike in an opaque object, draw a normal here. Then what happens? The light is bouncing back at the opposite direction with the same angle. This one is angle of incidence and this one is angle of reflection, and it is angle of incidence is equal with the angle of reflection. So this phenomenon is known as the phenomenon of reflection. But we know that light always travels in the straight line. Light always travels in the straight line. Okay, लाइट को जाना था एक स्ट्रेट लाइन में, बट वो बेंड कर गया. तो वो कितने एंगल से बेंड कर गया? बाय दिस मच एंगल. ओके, सो नेम दैट एंगल इज D. दैट मीन्स D is the angle of deviation. Okay, D is the angle of deviation. So what is the value of the angle of deviation? See, if we calculate the angle of deviation, then mark one point that this angle, this much angle is your 180 degree. Okay, this is the angle of 180 degree. If we subtract these two angles with 180 degree, then we find out the value of the angle of deviation. So here 180 degree, D is equal 180 degree minus these two angles I plus R. I plus R. Okay, so we know that I is equal with R. So R की जगह मैं I डाल दूँ, I plus I, that is 180 degree minus 2I. और इस चीज को लिख सकते हैं 180 degree minus 2R. These are the angle of deviation in case of the plane mirrors. Okay, so this is the one of the most important properties in case of the reflection. Reflection के केस में ये छोटे छोटे जस्ट प्रॉपर्टीज है, फॉर्मूलाज है, जो कि आपके कभी कभी 1 नंबर न्यूमेरिकल्स आ गए या 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल्स आ गए तो उसमें आ जाते हैं कभी कभी. सो यहाँ पर हम लोग को पता चला कि एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ द प्लेन मिरर्स दैट इज 180 डिग्री माइनस 2i और 180 डिग्री माइनस 2r. सो नेक्स्ट मूव टू द सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ द रिफ्लेक्शन. देन कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. If mirror is rotated by the angle theta, then reflected light ray turn by angle 2 theta. So how can we prove this? If the mirror is rotated by the angle theta, let us consider here a mirror that is M1, M2, and here is the incident light from the source, a normal and the reflected light. And here the angles are same. That means this one is the I angle and this one is the R angle. If we can write here not R angle, we also write here I. Okay, because we know that I is equal with the R. So here is also I, here is also I. Okay, then incident angle strike at the surface of the mirror, then the angle of reflection may be R. Okay, then I equal to R, so that we can write here only I. Then this is the normal to the surface of the mirror. If we rotate the mirror with an angle theta, that means if we rotate the mirror this one is M1 dash and M2 dash, and this angle is theta. Okay, so this mirror is rotated with an angle of theta, and the new mirror position is M1 dash and M2 dash. Okay, so what happens here? See, for M1 and M2 the normal is drawn here,
mirror position by an angle theta, that means your normal position also be shifted by the angle theta. See, if we consider this as a mirror and this one is our normal, okay, this is the mirror surface and this is the normal. If we rotate the mirror with an angle theta, that means your normal also rotate with the angle theta. If we rotate the mirror with the angle theta, that means your normal also rotate with the angle of theta. Okay, so here your normal also rotate with the angle of theta. So here is the normal. Okay, like this. So here is n and n dash. The angle between n and n dash is also theta, because n dash, that means the new normal, also shifted by the angle theta. Then यहाँ पर हम लोग को फाइंड आउट करना है the reflected light ray turns by the angle to theta. Okay, reflected light rays, when the mirror is rotated by the angle theta, that means your reflected light rays, your new reflected light rays turns by the angle to theta. So we cannot change the position of the incident light. Okay, यहाँ पर हम लोग सोर्स का पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, जहाँ पर सोर्स है वहीं सोर्स को रखते हैं, जहाँ पर हमारा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वहीं पर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को रहने देते हैं. इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को चेंज नहीं करते हैं. अगर आपका चेंज होगा तो सिर्फ आपका नॉर्मल चेंज हो रहा है एंड आपका रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट भी चेंज होगा. सो यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल है वो चेंज हो जाएगा. सी, हियर इज द इंसिडेंट रे एंड हियर इज द न्यू नॉर्मल. सो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज I plus theta. Okay, then where is the reflected ray of light? Obviously the reflected ray of light is I plus theta. We should add in the angle, that is theta. ये वाला हो गया आपका I एंगल, तो यहाँ पर हम लोग एक थीटा एंगल को ऐड करते हैं. ये वाले एंगल को यहाँ भी एक ऐड करते हैं, that is this one is R dash. So the new angle of reflection is I plus theta. सबको समझ में आ गया? आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो हो गया I plus theta, न्यू इंसिडेंट एंगल, एंड आपका जो नॉर्मल के साथ नया रिफ्लेक्टेड रे आपका एंगल बना रहा है वही सेम एंगल, दैट इज I plus theta. और उसको हम लोग बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत हो, I plus theta इज इक्वल विथ R plus theta. इस चीज में हमेशा कंफ्यूज मत होना. I इक्वल विथ R, इस वजह से हम लोग यहाँ पर I ही कंसिडर कर ले रहे हैं. सो यहाँ पर फिर देखते हैं कि हम लोग को कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है. आप लोग खुद ही देख लो. हम लोग को फाइंड आउट करना है कि अगर मिरर आपके थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज टर्न्स बाय 2 थीटा. जो नया रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो 2 थीटा एंगल से टर्न करेगा. मतलब आपका जो R, यहाँ पर ये वाला नेमिंग दे देते हैं, जो R डैश जो एंगल होगा वो होगा आपका 2 थीटा. यही आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है. ओके, जो आपका ये वाला जो एंगल है, ये एंगल 2 थीटा से टर्न करना चाहिए, वो यही चीज पूछ रहा है. तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? बड़ा ही सिंपल सा प्रूव है, आप लोग देख लो. देखो, अब हम लोग ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, अब हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग को ये वाला एंगल का वैल्यू चाहिए. ओके, तो ये वाला एंगल का वैल्यू कितना हो गया आपका? I प्लस थीटा. ओके, ये वाला एंगल का वैल्यू हो गया I प्लस थीटा. तो ये वाला जो एंगल है इसको लेते हैं, कंसीडर दैट एंगल इज x. ओके, इस एंगल को कंसीडर करते हैं x. तो हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब देखो, ये जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल आपका कितना है? I, बिकॉज आपके पहले वाले हिसाब से जाओ, पहले वाला का नॉर्मल ये वाला था n. ओके, एंड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका I होता था. सो हियर I, दैट मीन्स दिस एंगल, ये वाला एंगल कितना होता था? I माइनस
एंगल बना रहा है वो है आपका आई एंगल, जो पहले वाला रिफ्लेक्टेड है। तो अगर पहले वाला रिफ्लेक्टेड रे हमारा नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है आई, दैट मीन्स हमारा नया नॉर्मल के साथ वो वाला रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या होगा, आई माइनस थीटा। ऑब्वियसली ये बड़े आई एंगल से हम लोग अगर थीटा को माइनस कर देते हैं, देन ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा हमारा आई माइनस थीटा। तो इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज द एंगल ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स एंगल को फाइंड आउट करना है। तो इस एंगल को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम लोग इस बड़े एंगल से इस छोटे एंगल को माइनस कर देते हैं, दैट मीन्स हम लोग को एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। देखो बड़ा एंगल कौन है, एन डैश ओ आर डैश, एन डैश ओ आर डैश, ठीक है। एन डैश ओ आर डैश से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं एन डैश ओ आर, एन डैश ओ आर को माइनस कर देते हैं, देन हम लोग को मिल जाएगा कितना, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। सो एक्स इक्वल टू एन डैश ओ आर डैश का वैल्यू कितना है, एन डैश ओ आर डैश का वैल्यू कितना है आपका आई प्लस थीटा, माइनस एन डैश ओ आर का वैल्यू कितना है, दैट इज आई माइनस थीटा। तो ये वाला कितना हो गया, आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा विच इज इक्वल टू आपका कितना, आई आई कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 थीटा। सो द एंगल इज हियर 2 थीटा। तो इस तरीके से हम लोग प्रूव कर पाए, दैट इज इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, दैट मीन्स द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज टर्न्स बाय द एंगल 2 थीटा। ओके, उसके बाद हम लोग जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज की तरफ, दैट इज how many number of images formed when the two plane mirrors are inclined with each other. Then the third property is here, number of images due to an object placed between two inclined plane mirror. This is the one of the most important properties in case of the plane mirror. Obviously इसमें से आपके questions भी बहुत सारे competitive exams वगैरह में आ जाते हैं कि आपको पूछा होगा कि अगर दो mirrors के बीच में एंगल कुछ इतना हो, देन कितने टाइप का मतलब कितने इमेजेस वहाँ पर फॉर्म होंगे। कभी कभी इसके बेस में भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ इमेजेस ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर। इफ वी कंसीडर टू मिरर दैट इज M1 and M2 and the M1 and M2 separated by an angle theta. Okay, M1 and M2 mirrors separated by an angle theta. If the object is placed here, okay, if the object is placed here, that means the object is makes an angle with M2 mirror, that is theta 2, and the object is makes an angle of theta 1 with the M1 mirror. This one is the basic concept. So there are basically three possibilities of the image formation. So here first possibility is if the object is in between the two mirrors, then the case 1, if 360 by theta is equal to n, which is an even number. Okay, theta is the angle between the mirrors. Okay, if the 360 degree divided by theta is equal to n. Okay, if this n value is an even number. Okay, जब भी हम लोग उस थीटा को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वहां पर कोई ना कोई एक वैल्यू आएगा। ओके, जो भी वैल्यू आएगा अगर वो एक इवन नंबर हुआ, दैट मीन्स नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द मिरर्स इज इक्वल विथ n माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर आपका n आया कितना, अगर n आपका एक इवन नंबर आया, दैट मीन्स आपका कितना इमेजेस फॉर्म होंगे, दैट इज n माइनस 1, और 360 बाय थीटा माइनस 1 भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। दिस केस इज बोथ फॉर सिमेट्रिकल एंड asymmetrical case. Okay, this condition
both for symmetrical and asymmetrical case. So what is symmetrical and asymmetrical? In case of the symmetrical condition, your theta 1 is equal with theta 2, and in case of the asymmetrical condition, theta 1 is not equal to theta 2. Okay, केयरफुली इसको समझ जाओ. अगर सिमेट्रिकल का केस दिया, दैट मीन्स थीटा 1 इज इक्वल विद द थीटा 2. अगर एसिमेट्रिकल का केस दिया है, दैट मीन्स थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2. इसको हम लोग प्रॉब्लम के तरीके से समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ थीटा इज 60 डिग्री. ओके, इफ थीटा इज 60 डिग्री, दैट मीन्स 360 by 60 is equal to 6. Okay, so it is a even number. 6 is an even number, so number of images is equal to 6 minus 1, that is 5. So 5 number of images are formed both for symmetrical and asymmetrical case. अगर इसको ड्रॉ करते हैं both for symmetrical and asymmetrical case, मतलब ऐसे अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग, देखो सिंप्लिसिटी के लिए ऑब्जेक्ट को बीच में सेंटर में रख रहे हैं. सेंटर में तो नहीं रह रहा. सिमेट्रिकल के केस में ऑब्जेक्ट आपके मिरर्स के सेंटर में रहता है, जैसे कि दोनों मिरर्स के साथ सेम एंगल बनाए. और अगर हम लोग का एसिमेट्रिकल का केस है, मतलब दोनों मिरर्स के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा इस तरीके से, जैसे ऑब्जेक्ट डिफरेंट मिरर के साथ डिफरेंट एंगल बना रहा हो. अगर हम लोग यहाँ पर 60 डिग्री लेते हैं, अगर हम लोग ये वाला केस लेते हैं सिमेट्रिकल. Okay, we consider the symmetrical case. That means here is the object and the angle with M1 is 30 degree and the angle with M2 is 30 degree. Okay, so this is the symmetrical case. Theta 1 is equal with the theta 2. If we consider the asymmetrical case, that means here is the object, here is 20 degree, here is 40 degree. Okay, both the angles are unequal with each other. So this is the first case when the 360 by theta is odd case. Okay, अब हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी इवन केस के लिए हम लोग पढ़ लिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑड केस के लिए. That is case 2. Okay, case 2, if 360 by theta equal to n is your odd number. Okay, if 360 by theta is equal to n, that is a odd number, then number of images are formed, that is n. यहाँ पर कोई भी n-1 नहीं करेंगे. यहाँ पर जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे, that is only n. Okay, that is only n for asymmetrical केस. ओके, ये कब किस केस में होगा? ओनली एसिमेट्रिकल केस में ही होगा. क्या होगा? द नंबर ऑफ इमेजेस इज फॉर्म ईच एन. डायरेक्टली हम लोग का जो आंसर आया हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं. इसको एग्जाम्पल के लिए से भी समझेंगे. फिर और एक कंडीशन आता है, अगर आपका सिमेट्रिकल केस हुआ. ओके, अगर आपका सिमेट्रिकल केस दिया है, दैट मीन्स n-1. ओके, अगर आपका एसिमेट्रिकल केस है, दैट इज n. अगर आपका सिमेट्रिकल का केस है, दैट मीन्स n-1. देन इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल्स भी जरूरी होते हैं. सो एग्जाम्पल्स ले लो. थीटा इज 72 डिग्री. ओके, थीटा इज 72 डिग्री. Then what happens? 360 divided by 72. Okay, so 360 by 72, what will? 5. Okay, and 5 is a odd number. So for symmetrical case, और ये वाला क्या करते हैं? Asymmetrical case कर देते हैं. Okay, for symmetrical case मतलब
बोथ द एंगल आर 36 डिग्री। तो यहाँ पर जो दोनों एंगल्स होंगे ये होंगे आपके 36 डिग्री। 36 डिग्री के अंदर हम लोग एंगल्स लेते हैं, दोनों एंगल्स अगर 36 डिग्री के रहते हैं, सो द नंबर ऑफ इमेजेस is n-1, that is 5 minus 1 equal to 4. That means 4 number of images are formed by the two mirrors. If in the case of asymmetrical means if we consider here theta 1 is 40 degree and theta 2 is 32 degree. Okay. Then in that case the number of images are 5. Okay. So हमेशा यही चीज याद रखना कि सिमेट्रिकल के केस में आपका जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो हमेशा n-1 होंगे एंड एसिमेट्रिकल के केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो डायरेक्टली जितना आप लोग फाइंड आउट कर रहे हो वैल्यू उसी चीज को ही हम लोग लिख देते हैं. सो दिस इज द सेकेंड केस व्हेन द वैल्यू इज योर ऑड नंबर. इवन नंबर के लिए हम लोग किए n-1 और 360 divided by theta -1 for both the symmetrical and asymmetrical case. एंड ऑड नंबर के लिए हम लोग दो केसेस पढ़े, जैसे कि सिमेट्रिकल के लिए n-1 होगा, एसिमेट्रिकल के लिए ओनली n. थर्ड केस के में क्या आता है, जैसे कि आप लोग का डिवीजन आ गया फ्रैक्शनल नंबर. ओके. तो यहाँ पर कोई भी एक डिवीजन आ जाता है फ्रैक्शनल नंबर, जैसे कि हम लोग यहाँ पर थीटा कंसीडर कर देते हैं 75 डिग्री. ओके. तो 360 डिवाइडेड बाय 75 करो, कितना हुआ? 360 डिवाइडेड बाय 75 कितना होगा? इज 4.5 ना. 360 by 75 is 4.5. Okay, so it is a fractional value. तो fractional value के केस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये सब कॉन्सेप्ट आते नहीं है बट आप लोग जान लो, कभी भी अगर फ्रैक्शनल नंबर आप लोग का है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे उसमें सिर्फ हम लोग इंटीजर पार्ट ही कंसीडर करेंगे. इंटीजर पार्ट मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो होल नंबर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, सिर्फ यही वाला पार्ट कंसीडर करेंगे और ये जो 0.5 इधर रह गया उस पार्ट को कंसीडर नहीं करेंगे. सो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो हो जाएगा आपका 4. ठीक है. ये केसेस इतना आते नहीं है बट आप लोग जान लो, अगर बाई चांस कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाता है दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट के पहले वाला जो नंबर है आज होल नंबर, उसी पार्ट को हम लोग कंसीडर करेंगे और उसके दूसरे पार्ट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे. सो ये नंबर ऑफ इमेजेस form is 4. Okay, so these are the basic concept और basic properties about the reflection. और भी बहुत सारे properties है रिफ्लेक्शन. प्लेन मिरर्स के इतने ही प्रॉपर्टीज थे, 2-3 प्रॉपर्टीज थे. उसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के भी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे. तब तक आप लोग इस तरीके का प्रॉब्लम वगैरह और भी कुछ ट्राई करते रहो. ठीक है. थैंक यू.